Yeah. So let's start the session. First of all, like welcome, sir, to join us. So let's start with your introduction and everything. What you do, how you came this stage journey and everything. Sure. Sure. So So I'm I'm currently currently heading heading marketing and growth marketing and growth for for a a tech health tech company, company, which is also a which is deep also a tech deep tech company into company mental into health mental and health wellness and wellness space. space. Okay, okay. And I And mean, I the mean, main the reason main is reason that is that I like to I work like to with work early with stage early growth stage growth companies. companies. And for the And for the last, last, I think, 10 I think years, I've 10 been years, working I've been with, working with you know companies which are companies which are in the early in the stages early of growth. stages of growth. And that's what I That's like. what I like. That's like That's what like I what love I doing as love well. doing as well. Okay, okay. So now the first question would be that as of now, like we all have seen regarding your book and everything, what your journey was. So you can start with something that which you have mostly focused on your book, or you might get along to know for us what about your journey, the most important part. Sure. Sure. I think I a think lot of people, a when lot they of people write, when they write, they have two they have two motives. motives. Some people have Some a people motive have a to motive just to write and just become write an and author. become an author. Yeah. Some people have Some a people motive have a to motive write to and write probably and influence probably people, influence okay, people, for okay, Mm-hmm. good, for better, good, better, ugly, ugly, whatever reasons, whatever right? They reasons, might right? just They want might to Yeah. just just want to vent just out vent what they out have. what they have. For me, it For has me, it been has been generally been, generally been, um, um, writing my writing my experiences. experiences. Example, my Example, first my book, How first to book, How to Validate Validate Idea, Idea, came came back from my back own from my failure. own I failure. started a I started company, a company, miserably failed, miserably did not failed, did validate not the idea, validate the idea, and I and said, okay, I said, fine. okay, fine. I mean, if I mean, I if failed, I I have don't failed, I want don't people to want fail. people to So fail. So Yeah. the the agenda the is agenda that is that nobody has a nobody has recipe a for recipe for success. People success. say People say ये डालोगे ये पैसा डालोगे पैसा डालोगे डालोगे तो यहाँ से तो सोना यहाँ से सोना निकलेगा, निकलेगा, ये डालोगे ये तो यहाँ पे डालोगे तो यहाँ से 5,000 का 5,000 5 का लाख हो पाँच जाएगा, लाख हो स्टॉक जाएगा, में स्टॉक डालोगे में तो डालोगे 50 तो करोड़ हो 50 जाएगा. करोड़ हो जाएगा. But But that's not the truth. that's not the Actually, truth. Actually, truth is truth people is have people have formulas for formulas for not failing not actually. failing actually. So if you So if you share share your your experiences about experiences about how not to how not to fail, fail, the the chances are chances are you'll probably you'll become probably become successful. successful. Probably, right? Probably, right? Instead of Instead saying of these are the saying these are the formulas for formulas success, for I think it success, is I think it is important important that people that share people their share their failures more. failures more. And that's what And I'm that's what trying to I'm do trying to do always, that always, I that I share share experiences, experiences, realistic realistic experiences of people experiences through my through books, my books about how about people how have people gone have through gone through realistically realistically in their in their journey. journey. Not everybody Not has been everybody has successful been throughout. successful People throughout. People Yeah, yeah. have been been failing around. failing But the around. But the important part important is part is that success is also success is very also very relative term. relative term. For For example, example, for for Devjit, success Devjit, could be success could becoming be a great becoming a great podcaster from here, podcaster from right? He here, wants right? to He have wants to have 1 million 1 million subscribers, subscribers. Narendra Modi, Narendra meet Bill Modi, meet Gates, Bill will Gates, etc. will etc. etc. Right? etc. That could be Right? part That of could his be part of success. his success. But But his success his could success also could also be be that he wants that to he wants buy to buy a a buy great a great plane, or plane or have buy have great money great money in the bank. in the bank. Or Or Devjit could be Devjit could be saying, yeah, saying, yeah, I just I need just need my my great great house, a house, a great bank great bank balance, balance, and a and peaceful a peaceful life. life. So these So three these things are three very things are different. very different. Mm-hmm. Yeah. How people How see people see success is a very success is a very relative term. relative So term. So if you if you want to want to chase your chase your own own standard of standard of success, success, please don't please don't compare with other compare with people, other and people, and it'll just it'll just screw the whole screw the level whole of level of understanding of success, understanding of and you will success, and you probably will fall probably flat. fall flat. Because when you Because when you compare, compare, the Yeah. joy the is joy gone is gone entirely of your entirely of success. your You just success. You start just start comparing, comparing, उसके पास उसके इतना है, पास उसके इतना पास है, इतना उसके पास नहीं है, and इतना all नहीं that है, and stuff, all that right? stuff, right? So So my books have my been books have always been what always the what realistic the realistic format of format of how how entrepreneurs or entrepreneurs or startups or leaders startups or should leaders should generally generally seek seek truth in truth whatever in they do. whatever they do. And if that And gives if that you gives you happiness, happiness, great, yeah. great, yeah. Yeah, obviously. वो तो मतलब I would say the most important part, happiness. Of course, I mean, Of course, आप खुश नहीं, आप आप जो खुश कर नहीं, रहे आप जो हो, कर रहे फायदा हो, क्या फायदा करने का? क्या फायदा करने आप चाहे नहीं है. नौकरी चाहे कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप चाहे आप एम्प्लॉयमेंट किसी को employment दे रहे किसी हो, को दे रहे नहीं, हो, कोई चाहे फायदा किसी नहीं को, है. whatever you do, whatever you right? do, right? How does it How matter? does it matter? कोई फायदा नहीं है. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एज वी ग्रो थ्रू मतलब इन टर्म्स ऑफ माई एज व्हेन आई वाज लाइक 5 10 और मे बी 15 ईयर्स रिगार्डिंग माइट बी 2005 और 10 दैट टाइम में इतना एआई या ये सब नहीं था, या फिर फेसबुक भी नहीं था, उतना ग्रो नहीं किया था. But that time mental peace, what I would say, is was much more as a comparison to now. Because आप Because ये देखो ना, आप ये उस देखो टाइम ना, में उस आपके टाइम पास में आपके पास ऊपर ऊपर
एक सोशल स्टिग्मा नहीं था, आपको नहीं, ये नहीं पता नहीं चलेगा था। तो आप you'll be left behind। नहीं आप था। लिंक्डइन पे नहीं हो, आप अभी क्या है, अभी क्या है, मेरे अगर 50,000 फॉलोअर्स फॉलोअर्स नहीं नहीं तो तो मैं मैं अच्छा नहीं आदमी हूँ। इसके 50,000 50,000 फॉलोअर्स फॉलोअर्स तो तो ये ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा आदमी आदमी है। बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंसर है। Now, Now these are social pressures which have which have gone gone wrong. wrong. Followers have Followers nothing have to do nothing with to your do with your identity identity. first of all। First of all, जिसके 1 लाख जिसके 1 फॉलोअर लाख है वो फॉलोअर अच्छा है वो आदमी अच्छा बुरा आदमी आदमी बुरा आपको आदमी आपको नहीं नहीं पता। पता। आपके 1 लाख आपके 1 फॉलोअर लाख आपको ये फॉलोअर नहीं आपको पता ये कि नहीं आप पता खुद कि आप आपको खुद जो जो हो in terms of how you want to deal with people, right? Yeah. So followers, followers, likes, likes, comments, ये जो comments, social pressures है ना, pressures है ना, इससे अगर आप इससे बाहर अगर आप निकलोगे बाहर तो I think निकलोगे तो life I think फोमो becomes हो गया है better। बेसिकली, फियर ऑफ मिसिंग आउट। Absolutely। Absolutely. So this FOMO part has to part be has taken to be off, taken off, and it has to and be it has to taken be off from a taken off very from a realistic very angle, realistic saying angle, यार saying यार गिर गया गिर कोई गया बात कोई नहीं, बात नहीं, फिसल के कोई बात नहीं, I कोई can बात नहीं, stand I up can stand up and I can still and I build can still something build out। something out। I will not Of course। compare with 100 people। 100 people। My journey My is journey different। is different। Let me try Let my me journey। try but my हाँ journey। मैं but हाँ हरदम मैं एक बार हरदम एक बार जब जीतते हैं हरदम सबको सबको बोलता हूँ, सब entrepreneurs को बोलता हूँ, चाहे वो गाँव से आए, चाहे वो सिटी से आए, चाहे वो टाउन से आए, टाउन से आए कि अपना काम अपना स्टार्ट काम करने से स्टार्ट पहले करने से and पहले before you start your work, before you launch your product, product, basically make sure you do the the validation of your validation of your business। business। That means how many people are willing to buy your product or product or services? services? Is there a Is there market a for market that? for Is that? there a huge Is there a market huge for that? market for that? Just test those data before you before you go all out, go all out because because हाँ, पैसा और मतलब time, market fit बन जाता है। पैसा time, हाँ, हाँ, wastage of money and time is equally bad, right? right? And it takes time to get back money, but time तो आता ही नहीं है। नहीं नहीं So- वही। So So it is important that you say these things and experiment a little। Of course experiment करना चाहिए life में, otherwise फायदा क्या? नहीं, पर risk हाँ। को mitigate करो, mitigate करो, कम से कम risk risk लेके, लेके, right? मतलब आई वुड से कि मिटिगेट भी हो सकता है, या फिर आई वुड से कि कैलकुलेटेड रिस्क होगा तो better थोड़ा- word, better word। I think हाँ, calculated is a better word। कैलकुलेट, because- क्योंकि इससे मतलब calculate- एक आपको ये भी होता है कि मतलब हाँ, इससे नीचे फिर हम लोग नहीं जा सकते, एक कैलकुलेशन रहता है। Correct। For example, आप स्टार्ट आप कर start आपके करो, पास आपके पास आपने एम्प्लॉय कर लिया, आपके आपके पास अगर 12 महीने की बच्चों को सैलरी देने नहीं, के लिए हाँ। पैसा नहीं है, नहीं है, मार्केटिंग में थोड़ा marketing सा में थोड़ा सा पैसा पैसा नहीं नहीं है, है, या या तो उससे पहले स्टार्टअप में कोई फायदा नहीं है, नहीं, because otherwise you will not be able to handle those those guys, right? guys, right? दूसरी बात हुआ आपने एक डीप टेक कंपनी स्टार्ट कर दी जिसमें फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स की कंपनी है, हाँ, आपको पता है आपको पता है रोबोटिक्स रोबोटिक्स के अंदर हार्डवेयर में पैसा में लगेगा, पैसा लगेगा, हाँ, हाँ, सॉफ्टवेयर में पैसा सॉफ्टवेयर में लगेगा, पैसा लगेगा, तो वो उतना पैसा उतना आपको पैसा आपको टेस्टिंग के लिए, ग्रांट के लिए होना चाहिए, होना चाहिए, रनवे के हाँ, लिए, कि हाँ, आपकी कि आपकी टीम टीम में सर्वाइव कर सर्वाइव सके कर 6 सके 8 6 10 8 महीने 12 10 महीने। महीने 12 महीने। नहीं तो नहीं अगर वो होगा। नहीं है तो अदरवाइज तो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, when you start building a product, people forget that they're building a company, they're not just building a product। उसमें HR भी है, finance भी है, marketing भी है, sales भी है, finance भी है, वो सारे एलिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ये जब होता है जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो देखते हो HR कौन हैंडल करेगा? फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, आप तो एक ही घुसे हुए थे, लेकिन सडनली जब आप मार्केट खोलते हो अब लगता है ये कौन हैंडल करेगा, कौन हैंडल करेगा? चलो ठीक है, with AI coming in, I think lot of things will improve in terms of content building, design will come in, coding will come in, but still finance will still be required ना। आपको फाइलिंग तो मैनुअली करनी हाँ, पड़ेगी, हाँ, राइट? हाँ, रीचेक करना पड़ेगा। तो ये चीजें कई चीजें रहेंगी जो कम हो जाएंगी, कई चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी। So people also forget that when they start a business, it is basically building a company also, right? And company has lot of parameters here। इंडिया में जैसे GST हो गया, ये हो गया, and every state has their own understanding of taxation, right? ये सब चीजें आती हैं वो फाउंडर के पास ही आती है। तो कैसी कंपनी का फॉर्मेट करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए कि LLP होनी चाहिए, या प्रोप्राइटरशिप से काम चल जाएगा। फर्स्ट एज ये हुआ, सेकंड हुआ कि टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए। आप लोगों को ये नहीं पता कि 20 लाख से ऊपर 20 लाख से अबाव क्रिएट्स अ GST अकाउंट, राइट? हाँ, 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 तो वो तूने प्लान किया है कि नहीं किया? So these things are इम्पोर्टेंट। no, I'm not saying it's expert होना चाहिए, should be known, and these are things that I probably always write in my book, saying you should be realistic, and as you said, it's a very good point that should take calculated risk। कई बार क्या होता है,
it's good to take sometimes great risk also without calculation. Yeah. वो भी अच्छा होता है. But वो once in a lifetime lifetime opportunity है कि आपके पास बहुत ही बहुत ही amazing disruptive idea है. idea है. हाँ आपके साथ एक टेक्नोलॉजी के अंदर हो बहुत सकता है कुछ innovation, फिर maybe उससे yes, maybe हाँ yes. बन जाए, मतलब दो ही होगा, या तो फिर वो सही में कुछ बनेगा या तो फिर कुछ नहीं होगा। innovation मतलब आपके पास बहुत extraordinary innovation हाँ। है, हार्डवेयर में क्या सॉफ्टवेयर हो में सकता है process तो में अब जो चांसेस आप चांसेस है। yes probably correct. और सर अभी मतलब इन करंट टाइम्स अभी आप कौन कौन से इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप या वेंचर्स के साथ कनेक्टेड है, और उससे कैसे आप हेल्प कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप और डीलिंग, ये सब अगर आप हम लोग को थोड़ा एक्सप्लोर करें। यार टाइम मिलता है तो मेरा फंडामेंटल फंडामेंटल क्लियर होता है कि if I get time I spend as much time as I can to help somebody right genuinely or advise them out. जितना time मिले हाँ ऑब्वियसली Now since I run some of the largest communities on LinkedIn, which have one of the largest is about 1 million, उसमें technically मेरे पास रोज के about 4 to 5 के बाद 6-7 emails आते हैं and though I get about 50 odd mails, but specifically if you talk about serious interest in about 4-5 people who want to have some advice across. So जितना मेरे से हो सकता है मतलब without any hiccups मैं उनको advice कर देता हूँ first level पे. अगर मेरे पास time होता तो मैं उनको pursue करता हूँ, time नहीं तो नहीं यार मैं बात नहीं कर पाऊंगा because I don't have time. एक आदमी के हाथ में दो हाथ होते हैं, 10 fingers and one brain, right? So you can't be at 500 things. It's not justify also. But I try as much as I can to answer and help or advise people as much as I can from the startup community. I'm part of a lot of startup communities as well, on ground. So as much as I can get हो सकता है, और students को मैं generally prefer करता हूँ उनको advice that don't feel bad about एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप इन्वेस्टर्स भी रह चुके होंगे, आई थिंक इन्वेस्टर्स भी आपने मैंने अपनी कंपनी में ऑफ कोर्स मैंने 3-4 बार कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया है. ऑफ कोर्स आई हैव रेज्ड इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल टाइम एंड अगेन. सो मेरे को दोनों साइड का एक्सपीरियंस है कि जब पैसा रेज भी किया है और हेल्प भी किया पैसा डिप्लॉय राइट. सो ठीक है बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी टीम है तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. But अगर अच्छी टीम नहीं है और अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो generally investments is uphill. I think it's important to have a great team first for raising investments. If the team is good, investment is norm. It's just a matter of time. But the team is not good. Even if product is good, investment is a little uphill task. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसी रिगार्डिंग में आपसे मतलब एक और ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इफ आई वर टू टेल यू लाइक 5 और 6 जो मेन फंडामेंटल्स होंगे जो कि एक एंटरप्रेन्योर बोल लीजिए या फिर नया जो स्टार्टअप आ रहा है या नया बिजनेस कम्युनिटी हो रहा है उनके अंदर होना ही चाहिए, 5 और 6 मस्ट हैव स्किल्स. I think the first important thing is उनके पास एक प्लान होना चाहिए सबसे पहले. प्लान इन द सेंस जो भी फाउंडर्स का प्लान नहीं है प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये सब चलाऊंगा, ये मेरा 1 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है. हाँ यही मतलब टाइम फ्रेम एक रहना चाहिए. नहीं तो लोग बोलते हैं हाँ प्लान है लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है कुछ. 3 साल से ज्यादा का प्लान बनाना चाहिए. आज के टाइम में पता नहीं 3 साल राइट. तो 3 इयर्स मैक्सिमम. सेकंड इज टीम. उसे करेगा कौन? मैं प्लान बना लिया, मैं मार्स पे जाऊंगा, प्लूटो पे जाऊंगा, अकेले नहीं होगा. हाँ एंड्रोमेडा अकेले जाऊंगा. अरे तुम्हारे साथ जाएगा कौन? करेगा क्या आदमी? Will people go with you? So second is team. First is the business plan. Third is of course your product. What kind of product is it? Is it disruptive in nature? Is it solving a problem? Does it have economies of scale? Etc. Right? डिमांड है कि नहीं मार्केट में. Of course. Last and one more important thing is how are you marketing the product? आपको सब कुछ अगर आप उसको मार्केट नहीं कर रहे तो is as dead as anything else. So you should have finite wisdom in terms of planning of your marketing and your go-to-market strategy, which would be executed for market with customer service, etc. सो सपोज मान लीजिए मेरा एक इन टर्म्स ऑफ एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, उसका एक क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ यू कैन से परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है जो मेनली आई थिंक वो सर्विस देता है एसईओ, सोशल मीडिया एंड एड्स, जो गूगल एड्स और ये सब रहता है. तो उसका एक प्रॉब्लम उसने मेरे को पूछा था, बट मैं उतना मतलब करेक्ट आदमी नहीं हूँ ताकि उसको एडवाइस दे सकूँ या आप अच्छे से बोल पाएंगे. उसका अभी
लास्ट 3 ईयर से रनिंग है बिजनेस, ठीक है। उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसको नया क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, रिटेनर तो है उसके पास बट नया एक्वायर नहीं हो रहा है। जो भी कई मतलब मैंने उससे पूछा भी कि क्यों हो रहा है, तो उसने बोला कि मीटिंग्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बट दे आर नॉट क्लोजिंग। वो डूइंग बोल के वो रह जाते हैं, नहीं तो फिर बता देते हैं अभी हमको नहीं चाहिए। उसने ये भी पूछा कि आप क्लियरली बोलिए व्हाट इज द रीजन और व्हाई आर यू नॉट परसुइंग दिस वी आर गिविंग 1 मंथ फ्री ट्रायल्स आल्सो बट दे आर नॉट कन्वर्टिंग। तो इसमें आपको क्या लगता है, मतलब क्या गलती हुआ होगा? उसका मार्केट भी काफी अच्छा किया है वो, मैंने ये देखा है। तीन चीजें हो सकती हैं which are very basic, right? First is the way he's selling might be wrong. ओके। वो शायद ओवरसेलिंग कर रहा है या अंडरसेलिंग कर रहा है, मुझे नहीं पता, might be. Second is उसका पिच जो है पिच डेक उसका यूएस होना चाहिए। कोई यूएसपी होगा वो शायद सीएसपी को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा। हाँ उसका एसईओ ऑन पेज अच्छा है या ऑफ पेज एसईओ अच्छा है, एसईओ अच्छा है, आई डोंट नो व्हाट इज बेटर। उसका पोर्टफोलियो में मैंने जहाँ तक देखा है उसका सारे मतलब प्रीवियस जो अच्छे रिजल्ट्स है, सर्विस है, ये सब कुछ मेंशन है, इतना ग्रोथ हुआ है, इतना ग्राफ सब कुछ दिया हुआ है। उसका अप्रोक्स 20 to 25 पैकेजिंग उसका शायद पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग आपको अगर इंस्टेंस में बोले तो उसका स्टार्टिंग मतलब एसीओ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अप्रोक्स 20-25 के आसपास मान लो आप एवरेज। नहीं बट पैकेजिंग तो वो पिच करता है भाई। अच्छा पिच करता है, पिच तो वो आपको सर हाँ सलमान खान और शाहरुख खान एक तरह से नहीं उसका एक डेक होता है बेसिकली पोर्टफोलियो, उसी के जरिए। तो डायरेक्टली तो कह रहा हूं मैं कि पैकेज कैसे कर रहा है वो शायद वीक होगा। अच्छा मतलब प्रोसेस आप देखो ना, एक बार बताओ, अगर मैं आप दुर्गा पूजा में अगर जाते हो टिपिकली, आप दुर्गा पूजा में एक कुर्ता पजामा पहनते हो बंगाली वाला, तो आपको लोग सोचेंगे भाई ये बंगाल से आया है, बंगाली होगा, राइट? तो माइट बी बंगाली, राइट? हाँ उसमें फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उसको कोई मैं पहन लूं चाहे कोई सरदारजी पहन ले, कोई वो कहे ये बंगाली होगा। एक मतलब assumption रहेगा उसको। बंगाली कुर्ता पहना है, पैकेजिंग हुआ ना। हाँ अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी क्रिश्चियन वेडिंग में जाओगे और आप you dress like suit and all that, right? Typically he may think you're from the family, right? Or if there's a close wedding, or if you go into a South Indian you dress like a South Indian typically, and Indian who's living in South India. I'm not saying South Indian is the wrong word actually. Any Indian living in South India, if you go to a marriage in Chennai or Bangalore and you dress like somebody from there, they'll think that you're from there only, right? So जो आपने पैकेज किया है उस आदमी को अगले आदमी को समझ तो आना चाहिए। दूसरी बात, आप उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से? शेमलेसली आधी से ज्यादा मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, सर हमारा प्रोडक्ट ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ मतलब क्वाइट सिमिलर। नहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई शुड आई बाय योर प्रोडक्ट। आपके अंदर क्या है नई चीज जो और किसी में है नहीं, तो आर यू पोर्ट्रेइंग यूएसपी? इफ यू आर नॉट, देन व्हाई शुड आई बाय द प्रोडक्ट, राइट? ये भी एक इम्पोर्टेंट, मेरे को भी यही मतलब लगा था कि यूएसपी नहीं है। और आजकल हम लोग मतलब मैं भी देख रहा हूँ चारों तरफ से पता नहीं हजारों लाखों ये डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज आ रहा है, बट एट द एंड रिजल्ट उनका उतना अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ बात। एक और बेसिक प्रॉब्लम, मार्केटिंग एजेंसीज कभी भी सेल्स के बारे में बात नहीं करती। ये कोई नहीं बोलता कि देखो साहब मैं आपके लिए 50 लीड लेके आऊंगा। ये तो मेरा अगर बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर रहा, वो मार्केटिंग एजेंसी में मैं पैसा क्यों डालूं? लाइक्स और कमेंट्स के लिए तो पैसा डालना नहीं मुझे। नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी तो इज माय मार्केटिंग डॉलर और मार्केटिंग स्पेंड इंक्रीजिंग माय सेल्स टर्नओवर? इफ इट इज यस देन आई विल, अदरवाइज आई विल नॉट। यस ये भी आई थिंक यही मेन लैंग्वेज थिंक लाइक अ फाउंडर ना यार। ये भी यही आई थिंक यही मेन प्रॉब्लम है कि उसको अपना मतलब यूएसपी और ये सेल्स के तरफ ज्यादा पुश या फिर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर उसी की वजह से हेल्प करना चाहिए। मेरे इस इनिशिएटिव से अगर आप 1 लाख रुपए आप या $100,000 लगाएंगे इस चीज में, उससे आपकी इतनी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स निकल सकती हैं। उसको कन्वर्ट करोगे तो आपकी X/5 आपकी SQL which is sales qualified lead कन्वर्ट हो सकती है। फाइनली दिस कुड लीड इनटू अबाउट 2%, 3%, 5% फाइनल कन्वर्जन इनटू बिजनेस। तो वो जो रेशियो है उसका पता होना चाहिए। He should speak the language of that company that he's talking to. He should know about that company and the sector that other person is. If he doesn't know and doesn't have the homework, the person will not give you money. तब तो नहीं होगा ऑब्वियसली। और अभी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, जैसे कि आपने 5 या 6 मेन ट्रेड्स बताए, ये तो ऑब्वियसली होने ही चाहिए।
उसके अलावा मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं नेटवर्किंग या फिर इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग और कनेक्टिंग विद पीपल, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी के ज़माने में सोशल मीडिया जैसा आपने अभी बोला कि मतलब पूरा ही कनेक्टेड है और लोग हर मिनट में ये क्या इंस्टाग्राम में नया रील आ गया, ये फेसबुक पे क्या आ गया, हमेशा चेक ही करते रहते हैं। बट आई हैव सीन दैट एक्सेप्ट लाइक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स, ज़्यादातर लोग या तो मतलब जॉब के लिए काम कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया कहीं भी खोल के देखोगे ना, तब मतलब काम की चीज़ें 10% होगी और फालतू की चीज़ें 90% होगी। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हरदम चलता है, चलता आएगा। हाँ जो स्मार्ट आदमी है वो या तो एम्प्लॉयर बनेगा या फिर वो किसी अच्छे आदमी के साथ काम करेगा या काम, किसी हाँ नई चीज करेगा, राइट? यही। आई थिंक इट इम्पोर्टेंट कि आप नेटवर्किंग तो करते रहो, बट नेटवर्किंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइक्स और अदर थिंग्स, राइट? व्हिच इज बेसिकली आजकल कहते हैं कि देखो ये इन्फ्लुएंसर है, इसके 5000 लाइक्स हैं, 50,000 फॉलोअर, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ। I think it is important that you should follow your own instincts in life to go where you want to go, which means अगर आपको अपना काम करना है या अपने सेक्टर में काम करना है और आपके पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो आप उस जगह एम्प्लॉयमेंट लो जहाँ पे उस सेक्टर में जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपना काम करना, फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं कि नई तरीके की, इट इज इम्पेरेटिव कि आप क्वालिटी वॉल्स के अंदर, मदर डेयरी के अंदर या बड़ी कंपनीज में काम करें शायद एज एन एम्प्लॉय, और छोटी कंपनी में to understand the process, right? आपको प्रोसेस नहीं पता होगा, आपको मार्केटिंग नहीं पता होगा, आपको सेल्स नहीं पता होगा, अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपने पैसे लगा के या किसी और के पैसे लगा के आप खराब कर सकते हैं उसको। तो क्यों ना किसी और के, क्यों ना आप don't moonlight right now, maybe start with working full time and then probably graduate to own your own scale. So मेरा मानना है कि आपकी लर्निंग कर्व खत्म नहीं होनी चाहिए। लर्निंग कर्व का मतलब ये कि डोंट वेस्ट योर टाइम। Of course, waste time enjoying people and liking stupid stuff, हम सब like करते हैं, हम सबको stupid stuff अच्छा भी लगता है। हम इंडियंस हैं, हमें आधा टाइम बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। तो that is not a problem, but the basic thing is उसके अलावा जो टाइम बचा है कि उसके अंदर हम प्रोडक्टिव सही से, हाँ वही मतलब लोग उतना ही उलझ जाते हैं उन सब चीज़ों में, लास्ट में लगता है अरे पूरा दिन बर्बाद हो गया, क्या ही कर दिया। वो कंपनी तो वही चाहती है ना कि आप स्क्रीन करते रहें और उसके पैसे बनते रहें, उसके वजह से बनते हैं। लिंक्डइन में हालांकि फिर भी कुछ कुछ काम की चीज़ें मिल जाते हैं, बट सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में आई रियरली थिंक कि कुछ मतलब बनता होगा, अनलेस वाइज आप कुछ XYZ ऐड चला रहे हैं तो फिर अलग बात है। वहाँ पे भी पैसे बनते हैं लोग ऐसा नहीं मतलब हाँ एड्स या स्मार्ट फिर लोग तो वीडियो। स्मार्ट लोग तो पैसे बनाते हैं, बट आदमी को इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए कि 500 रुपए डाल के आप 5 लाख बना सकते हैं। वो तो दैट गैम्बलिंग का जो माइंडसेट है ना, वो जनरली इज वन अमंग 1 मिलियन। वो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब 500 या 1000 रुपए दे के आप कितना ही बना सकते हो उसका। वो स्टॉक दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर, बट दैट्स नॉट द जनरल बॉल गेम ना। होता नहीं जनरली, आप वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ये गैम्बलिंग होता है, राइट? स्टॉक में भी हाँ, स्टॉक में भी सर आपको मतलब बहुत ही रिसर्च करके एकदम पूरा मतलब एकदम चीजें को देख के सही से बनाएंगे तो चांसेस है कि बन जाएंगे कुछ प्रॉब्ली। हाँ वही बात है। और सर अभी मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करें, जैसे कि अभी बहुत बूम पे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड एवरीथिंग, तो अभी आपका मतलब क्या पर्सपेक्टिव रहेगा कि नॉर्मल जो बिजनेसमैन हो या जॉब सीकर हो या फिर जॉब कर रहा हो, कोई भी हो, उसको मेनली फोकस कैसे करना चाहिए ताकि उसका पैसा बढ़े और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन उसको भी बीट हो जाए? देखो मैं इसमें कोई गुरु नहीं हूँ, मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब मैं शायद 10 15 20 साल पहले जब काम स्टार्ट किया था, 20 22 साल पहले काम स्टार्ट किया था, तो जितना करता था वो शायद घर पे देते थे या whatever, you need to support the family, right? But आज के टाइम में फैमिली में भी सपोर्ट करने का दिमाग नहीं रहता, तो तुम छोटे टाउन से या छोटे विलेज से आए हो, बिल्कुल जितना मैं उससे डबल तो मैं स्पेंड करूंगा, राइट? However, I feel so. This is my understanding that at least 1/4 of whatever you earn, चाहे वो 5,000 रुपए है, चाहे 10,000 रुपए है, चाहे वो 50,000 है, चाहे वो 1 लाख है, I think you should invest into something. Something I don't know what that would be. Could be mutual funds, could be stocks, could be मतलब जिससे आपका ग्रो हो बेसिकली। आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। Maybe 70% when you're young
80% should be on equity and 30% should be on debt portfolios. Basically risk portfolio के हिसाब से अगर देखोगे तो बट अगर आपको लगता है आप सिक्योर रहना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ करती है राइट गोल्ड में डाल सकते हैं आप गोल्ड स्टॉक में डाल सकते हैं अगर रिस्क ले सकते हैं राइट हाँ रियल एस्टेट भी आई थिंक अच्छा होगा रियल एस्टेट में डाल सकते हैं बट रियल एस्टेट में यू नीड चंक आपको रियल एस्टेट में ऐसा हाँ नहीं मतलब 2 मिनट तक छोड़ 2 मिनट तक ले सकते हो या नहीं, नहीं। मेरे को 10 फीट का कर दे दो यार ऐसा नहीं होता है नहीं नहीं तो लेकिन आप स्टॉक में ले सकते हो ना हाँ, आप stock रियल में हो एस्टेट कंपनी का स्टॉक ले लो स्टॉक हाँ आप हाँ 5 स्टॉक ले सकते हो आप एक स्टॉक भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट शुड बी अराउंड 1/4 टू स्टार्ट विद एंड शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट टू व्हाट 1/3 maybe in the coming times अगर आप ये 10 साल 15 साल करते हो तो आपको एक पोर्टफोलियो बन जाता है उसको आप you can start investing in because after 20 years that portfolio increases ना cumulative increases बिल्कुल तो it's important that way क्योंकि अभी अभी पता नहीं ये फ्लो आ गया है या कुछ भी कह लीजिए कि योलो हो गया है मैक्सिमम लोगों को मतलब अभी आप जीते हो अभी पूरा जो आपका मतलब विशेष है या फिर डिजायर से वो फुलफिल कर लो बाकी फ्यूचर का किसी को मतलब पता नहीं है ऐसा एक आ गया है बट आई थिंक ये भी थोड़ा मतलब कंट्रोल वे में होना चाहिए नहीं तो फिर बाद पे अगर भगवान ना करे कोविड जैसा कुछ फिर आ गया तो फिर क्या होगा तो you never know यार it's all दोनों चीजें ठीक है कि you should live for the day also that's all हाँ nothing मतलब wrong थोड़ा with it. थोड़ा करो लेकिन पूरा मत करते रहो You should prepare for well हाँ। right नहीं तो फिर मतलब वही अगर इन फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखे तो मेडिकल मेडिकल छोड़ दो कोई भी एक्सपेंसेस अगर चाहिए होगा तो हम लोग तो मतलब वही से ही इन्वेस्ट करेंगे वो ही एक बात है और अभी सर आप जैसे कि आप भी देख रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बोल रहे हैं कि स्टार्टअप एक इकोसिस्टम बूम हो रहा है इंडिया में अभी बहुत सारा स्टार्टअप्स नए विभिन्न मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में आए हैं जैसे कि एआई हो गया जैसे कि मार्केटिंग सेल्स में तो बहुत ही ज़्यादा आए हैं इसके अलावा भी आप अगर आप बात करें सर्विस के अलावा मतलब प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आए तो अभी सर आपको क्या लगता है मतलब इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 10 20 या 15 इयर्स मतलब इंडिया को मतलब कैसे आप देख रहे हो या फिर मतलब कैसे ग्रो करेगा इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम yeah India is the largest economy in the world या एज ऑफ नाउ तो जो लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी अब thankfully and thanks to our existing government and the prime minister of course is the government of course so I will say the government has been very nicely portrayed India in the global settings the only thing that I think Indian ecosystem should have is more friendly taxation system for the startups मैं अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करूं तो मैं शायद मैं अपने मोबाइल पे स्टार्ट कर सकता हूं मैं राइट या पॉसिबली आपको क्या 3 क्लिक्स में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं मैं मेरा क्वेश्चन अगर नहीं तो देयर इज अ प्रॉब्लम राइट ऐसे कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है वो 3 क्लिक्स में अगर एग्जिट नहीं कर जाते या एंट्री नहीं करते तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं तो 3 क्लिक्स में अंदर इंस्टाग्राम 3 क्लिक्स में अंदर लिंक्डइन 3 क्लिक्स में अंदर राइट दीस आर ग्रेट प्रोडक्ट्स इनका बहुत यूजेज बहुत अच्छा है तो क्या मैं कंपनी 3 क्लिक्स में खोल सकता हूं राइट ना क्या मैं वो कंपनी एक छोटे से छोटे विलेज में खोल सकता हूं उसको उसके पास अगर कोई आइडिया है क्या वो आइडिया अपने आइडिया यूज कर सकता है सो आई थिंक फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट support and what do you call as support system of the government should be very strong not only in cities but in towns also in small cities, small villages also तो आई थिंक बिकॉज हमारी कंट्री इतनी बड़ी इसमें शायद 10 यूरोप आ जाए उनके पास 500 या 600 आदमी करने के लिए होते हैं 1000 लगा लो 10,000 लगा लो 10,000 हमारे आदमी तो शायद मेरे ख्याल में जनकपुर में होंगे या फिर पास स्ट्रीट में 10,000 आदमी घूम रहे होंगे 2 बजे दोपहर के अंदर या मनी ट्रेन में 50,000 आदमी घूम रहे होंगे राइट सो वी आर कंट्रीज इन स्टेट्स मतलब वेस्ट बंगाल अगर पूरा लगा लो वेस्ट बंगाल में पूरा आधे यूरोप आ जाएगा बहुत 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 ज्यादा तो मेरे कहने का मतलब ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड also on not only tier A cities, tier B cities and tier C cities, but also ecosystem of understanding of value creation with say incubators, accelerators, mentors, fund arrangements, grants to ensure कि भाई मेरे पास अगर आइडिया है और अच्छा आइडिया है उसको लाइट ऑफ डे कैसे दिखाएं so I think lot of things have to still go but I think we are going in the right direction here yeah because
एज ऑफ नाउ मैं कंपेयर भी कर रहा था लास्ट 2 या 3 बिफोर कोविड का भी अगर बात करें तो उतना नहीं हुआ था, हो रहा था धीरे धीरे, बट कोविड जैसे ही आया डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल सर्विसेज एकदम बूम हो गया, उसके बाद भी और इंक्रीज किए जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि मतलब इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, अभी तो डेवलपिंग कंट्री है। आई बिलीव 2000 अभी 24 चल रहा है, 30-35 के अंदर ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी जितना ग्रोथ चल रहा है बहुत यार 3 चीज़ें। साल और जी, अभी कोविड के 1 साल और निकाले, 1 साल की बात करते हैं, हाँ। भगवान करे 35 तक पहुंच जाए। नहीं आएगा सर, मतलब But let's talk year by year. हाँ वो एक बात है। और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अगर ये बात करें हम लोग की, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, इनमें दो मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो कि सामने से दिखाई नहीं देती। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर चीज़ डिजिटली बाई कर रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट का क्वालिटी या फिर उसका क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इन हैंड एक्सपोजर जो होता है उसका उसको उतना मतलब नॉलेज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिजिटली देख रहा है, उसको सामने उतना एक्सपोजर नहीं है। तो इस बारे में मतलब आप कैसे ये डिफाइन करेंगे कि इफ आई एम बाइंग समथिंग डिजिटली ऑनलाइन विदाउट गेटिंग दैट इन माय हैंड, तो उसको मतलब कैसे जज करें, एक्सेप्ट रिव्यूज तो हम लोग देखते ही हैं, उसके अलावा। यार 3D और AI के आने के बाद, वर्चुअल रियलिटी के बाद, हाँ। probably we will see it across better. So मेरे हिसाब से augmented reality और virtual reality के अंदर जो products align कर दोगे तो you will have a better perspective of how the product looks and feels like. I think that is the only change I can see. बिकॉज अदरवाइज मतलब ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट आपको हाँ स्पेसिफिकेशन वाइज दिखता है कि अच्छा है, बट आफ्टर यूजिंग और आफ्टर रिसीविंग आपको लगता है नहीं यार ये मतलब उतना हेल्पफुल नहीं था जितना दिखाई दे रहा था या समझ आ रहा था। ये भी काफ़ी एक ड्रॉबैक है। बाकी अदरवाइज तो डिजिटल प्रोडक्ट्स तो है। तो इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर प्लान सर, मतलब आप क्या इन टर्म्स ऑफ 2 years और 3 years डाउन द लाइन सोच के रखे, क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या पार्टनरशिप करेंगे? कुछ नहीं यार, हम तो मतलब मेरे मानने हैं रिलैक्स करेंगे। कोविड खत्म हुआ है, उसका हैंगओवर भी खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो अभी 4 साल तो 4 नहीं 3 साल तो हो गया सर ऑलमोस्ट। पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स करेंगे यार। ठीक है सर, तो ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था आपके साथ। आई होप नेक्स्ट और 2-3 आएंगे। या बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने बोला कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम हो रहा है, तो इसके लिए अभी ये जो नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी के सीईओ है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये बात बताई कि मतलब इंडियंस जो भी स्टार्टअप नया स्टार्ट कर रहे हैं वो सोचते बड़ा और करते भी है एकदम से बड़ा और फट जाते हैं। तो ये उनका कोट अनकोट मतलब एग्जैक्टली यही बोला था। तो ये इशू हो रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जो आप या बाकी सारे फाउंडर्स फेस किए या फील किए वो गलती हम लोग ना दोहराए जो भी नया आ रहा है स्टार्टअप में। तो इसीलिए मतलब जितना हो सके अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, और बाकी तो हमारे पीएम सर तो है ही। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट मान लीजिए विद इन 3 या 4 weeks कंफर्म एक टाइम स्लॉट आप दे दीजिएगा बस। थैंक यू। ओके, मैं बाकी इसी के साथ मतलब ये खत्म कर रहा हूँ कि होप कि कुछ हम लोग का ऑडियंस को मिला होगा जिससे कि वो लोग जस्टिफाई कर सके इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन। कुछ सर का डीएम और एवरीथिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ मेल आईडी मैं आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। हमें लिंक्डइन आईडी डाल देंगे, वहां से कनेक्ट भी आएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक एंड फॉर ऑल द बेस्ट सर।